Hello everyone, hope you are doing well. My name is Priyanka Yadav and I am a research scholar. Today's topic is economic problem and production possibility curve. So let's start the session. So before start the presentation, it is very important to know what is an economy. An economy is a system in which people earn their living by performing different economic activities like production, consumption and investment. जैसे कि प्रोडक्शन में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है और उसके रिटर्न में वो उनको वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देता है। कंजम्पशन जब हम करते हैं तो एक कंज्यूमर अगर कंज्यूम कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट तो उसके रिटर्न में वो क्या नाम है उसको पैसे देता है। वैसे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको रिटर्न मिलता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. The problem of choice has to be faced by every economy of the world, whether developed or developing. Human beings have wants which are unlimited. When these wants get satisfied, new wants crop up. Human wants multiply at a fast rate. The economic resources to satisfy these unlimited wants are limited. As we know that हमारे जो वॉन्ट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं बट जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. इन द अर्लियर सेशन ऑल्सो वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल. अ पर्सन हैज 10,000 रुपीज इन हिज पॉकेट. दैट 10,000 इज अ लिमिटेड रिसोर्स पर जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं उसके वो अनलिमिटेड है. जैसे कि वो 10,000 को एक रेस्टोरेंट में जाके खर्च कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, एक फ़ोन खरीद सकता है. तो ये जो रिसोर्सेज हैं वो जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है बट जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है. दैट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. Our next slide is about an economic problem of an economy. So there are three problems like what to produce, how to produce, for whom to produce. So what to produce? An economy has to make a choice of the wants which are important for the economy as whole. For example, if the economy decide to produce more clothes, it is bound to reduce the production of food. The reason is that resources used to produce food and grains are limited and given. Thus, an economy has to decide what good it would produce on the basis of availability of technology, cost of production, cost of supplying, demands for the commodity. Our second problem is how to produce. It is the question of choice of technique of production. There are two type of technique of production: labor intensive, capital intensive. Since resources are scarce, an inefficient technique in production which would lead to wastage of resources and high cost cannot be applied. A technique of production which would maximize the output or minimize the cost should be used. We generally consider two types of technique. As I have told you earlier, there are two types of the technique. One is labor intensive and second is capital intensive. Our third problem is for whom to produce. किसके लिए प्रोड्यूस करें? मिडिल क्लास के लिए प्रोड्यूस करें, लोअर क्लास के लिए प्रोड्यूस करें, हायर क्लास के लिए प्रोड्यूस करें, जिससे कि सबको वो जो प्रोडक्शन है, सबको जो गुड्स हैं, सर्विसेज है, वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो. तो दैट इज द एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि कैसे तो हम प्रोड्यूस करें, क्या हम प्रोड्यूस करें, कितना हम प्रोड्यूस करें और किसके लिए हम प्रोड्यूस करें. सो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कॉम्बिनेशन दिखाता है गुड्स के कि कितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज में. एज यू कैन सी इन द डायग्राम दैट ए एंड बी आर द पॉइंट विच आर अटेनेबल एंड सी एंड डी आर द पॉइंट विच आर नॉट अटेनेबल. इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए और बी पॉइंट को लेती हूँ तो वो कॉम्बिनेशन दिखाता है कि हाँ मैं इतना एक्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ और इतना ही मैं वाई प्रोड्यूस कर सकती हूँ मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ. बट अगर मैं डी पॉइंट लेती हूँ जो कि नॉन अटेनेबल है, इसका मतलब ये है कि मेरे जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, पर अगर मैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जो डी पॉइंट है उसे अटेन नहीं कर सकती, उसे अचीव नहीं कर सकती, ये नॉन अचीवेबल पॉइंट है क्योंकि जो मेरे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है. बट अगर मैं सी पॉइंट लेती हूँ, सी पॉइंट ये दिखाता है इनएफिशिएंसी दिखाता है. इसका मतलब है कि जो वेस्टेज हो रहा है वो रिसोर्सेज का हो रहा है, आइडल है रिसोर्सेज मेरे, क्योंकि ए और बी पॉइंट है वो अचीवेबल पॉइंट है, वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ. बट जो सी जो पॉइंट है वो ये दिखाता है कि मेरा जो रिसोर्सेज है दे आर वेस्टिंग, दे आर आइडल, जो कि हमारे लिए सही नहीं है. इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व है जिसमें ए और बी पॉइंट है
वो एक अटेनेबल पॉइंट है, उससे हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। There are some assumptions in production possibility curve. First, technology remain constant. टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में वो कांस्टेंट रहती है। सेकंड जो है वो रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज होते हैं, कोई भी रिसोर्सेज आइडल या वेस्ट नहीं होता। एज आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर स्लाइड दैट जो हमारे जो दो पॉइंट थे ए और बी वो अटेनेबल थे, और जो सी और डी थे वो नॉन अटेनेबल थे, नॉन अचीवेबल थे। जो सी पॉइंट था वो अचीवेबल इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, वहाँ पे वेस्ट हो रहा था। इसलिए हमेशा हम पीपीसी कर्व में वो पॉइंट लेते हैं जो कि पीपीसी कर्व के ऊपर आता है, ना बाहर और ना अंदर, क्योंकि वो जो पीपीसी पॉइंट के ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो अटेनेबल होते हैं, अचीवेबल होते हैं, और वो बेस्ट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। थर्ड, जो हमारे रिसोर्सेज हो वो स्पेसिफिक होते हैं। लाइक हम दो गुड ही प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। अगर मान लो मैं एक्स प्रोड्यूस कर रही हूँ और वाई प्रोड्यूस कर रही हूँ, और सपोज मैंने ये सोच रही हूँ कि मुझे एक्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, तो मुझे वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए मुझे रिसोर्सेज जो है वो शिफ्ट करूंगी एक्स के पास वाई से लेकर। जो अमाउंट है रिसोर्सेज के, वो रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो सकते। और जो एज आई हैव टोल्ड यू इन दिस सेशन ऑल्सो दैट जो इकोनॉमी जो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में सिर्फ दो ही प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेते हैं, लाइक व्हीट राइस लेते हैं, या एक्स और वाई लेते हैं, या कंप्यूटर कार लेते हैं, तो सिर्फ हम दो गुड्स को ही लेते हैं, कंसिडर करते हैं जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाते हैं। So, what is the feature of production possibility curve? Production possibility curve slope downward. Production possibility curve is concave to the origin. As you can see in the diagram, कि जो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है उसकी अजम्पशन ये होती है कि वो दो गुड्स को लेता है, लाइक एक्स एंड वाई, लाइक व्हीट एंड राइस। तो जैसे अगर हम एक्स की प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हैं, हम सपोज करो मैं एक यूनिट और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाहती हूँ, तो मुझे गुड वाई की जो प्रोडक्शन है उसे कम करना पड़ेगा, उसके रिसोर्सेज को कम करना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारे गुड एक्स है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, और पीपीसी कर्व कॉन्केव क्यों होता है? वो एमआरटीएस की वजह से होता है। एमआरटीएस इज द स्लोप ऑफ पीपीसी कर्व। एमआरटीएस इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि हमें एक यूनिट को सेक्रीफाइस करी है, तो दूसरी यूनिट को हमने गेन करा है। ठीक है, जो एमआरटीएस है उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ गुड वाई लॉस्ट अपॉन में अमाउंट ऑफ गुड एक्स गेन। So, what is opportunity cost? What is marginal opportunity cost? What is marginal rate of transformation? Is as we can see in the diagram that अगर मैं कोई क्वांटिटी कार की प्रोड्यूस कर रही हूँ 200, तो मैं 2400 कंप्यूटर की प्रोड्यूस कर रही हूँ। बट अगर मुझे कार की प्रोडक्शन है वो 800 तक ले जानी है, तो मुझे कंप्यूटर की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, 600 तक कम करना पड़ेगा। तो कितना कम हुआ? लाइक स्लोप ऑफ जो एमपीपीसी है वो यही तो है ना, अमाउंट ऑफ गुड वाई लॉस्ट अपॉन में अमाउंट ऑफ गुड एक्स गेन। तो अमाउंट ऑफ गुड वाई मैंने कितना लॉस करा? मैंने 1800 लॉस कर दिया, क्योंकि वो माइनस में आ गया ना। 600 मैंने इंक्रीज नहीं करा, मैंने डिक्रीज करा, इसलिए वो माइनस में हो गया। और अमाउंट ऑफ गुड एक्स गेन कितना हुआ है, मतलब कार का कितना गेन हुआ है? मुझे 600 हुआ है। तो ऐसे मेरी स्लोप ऑफ पीपीसी कब निकलती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होता है कि जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास 10,000 रुपीज है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उसे इन्वेस्ट कर दूं या उसे मैं अपनी किसी बुक में लगा दूं, मैं बुक परचेज कर लूं। मैंने बुक परचेज कर लिया, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो मैंने लॉस कर दिया ना एक अल्टरनेटिव ऑप्शन को चूज करने में, मैंने जो दूसरा अल्टरनेटिव को सेक्रीफाइस करा है उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी? मेरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि एक गुड को सेक्रीफाइस करा और दूसरे गुड को ऑब्टेन करा, तो मुझे क्या मिला? जैसे कि -1800 अपॉन में 600 इज इक्वल टू -3, तो एमआरटीएस है वो 3 हो गया। ओके, कि मतलब मुझे 3 कंप्यूटर सेक्रीफाइस करने पड़े एक कार को प्रोड्यूस करने में। So let's do the question on this. देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड प्रोडक्शन ऑफ वाई। प्रोडक्शन ऑफ एक्स को जब मैं 0 कर रही थी प्रोडक्शन 100 थी, जब मैं एक्स का इंक्रीज करा 1 यूनिट तो मुझे वाई 90 करनी पड़ी।
2 करा तो 70 करनी पड़ी y की, 3 जब मैंने यूनिट प्रोड्यूस करी तो 40 करनी पड़ी, 4 प्रोड्यूस करी तो मुझे 0 करना पड़ा। तो इसमें मुझे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मिलेगा कि मैं ये देखूं कि 100 से 90 मतलब मुझे 10 जो है वो लॉस करना पड़ा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, तो ये मेरा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कितना है 10। वैसे ही अगर 90 से मुझे 70 करना पड़ा मतलब मुझे 20 लॉस करना पड़ा एक यूनिट को और प्रोड्यूस करने के। वैसे ही 40 में से 70 गया 30 और कितना प्रोड्यूस एडिशनल 1 यूनिट तो 30। अब मुझे कितना प्रोड्यूस अब कितना कम करना पड़ा 40 करना पड़ा 4 को प्रोड्यूस करने में। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। Our next question is, suppose a student has 4 hours in which he can either study or play tennis. What is the opportunity cost? आप बताइए क्या होगा opportunity cost? Opportunity cost ये होगा कि अगर मैंने स्टडी को चूज करा है और टेनिस को नहीं, तो मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ स्टडिंग है वो टेनिस को ना प्ले करने की है। थर्ड क्वेश्चन, मान लो एक इंडिविजुअल के पास 164 रुपीज है, या तो वो रेस्टोरेंट में खा सकता है या फिर कोई बुक खरीद सकता है, तो वो क्या करेगा, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बाइंग द बुक। मैंने अगर कोई बुक बाय कर ली है तो मैंने जो है वो रेस्टोरेंट में फूड नहीं खाया, तो फूड ना खाने का जो मुझे जो लॉस हुआ है उसे हम अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के थ्रू मेजर करते हैं। हमें ये पता है कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कॉनकेव होता है, बट कभी कभी वो कॉन्वेक्स भी होता है, स्ट्रेट मतलब कांस्टेंट भी होता है और कॉनकेव भी होता है। हमारा जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड लेफ्टवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकता है। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट डायग्राम। जो कन्वेक्स होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे कॉनकेव में ये होता है कि अगर हमें गुड एक्स प्रोड्यूस करना है तो हमें वाई ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक यूनिट गुड एक्स की प्रोड्यूस करने के लिए, इसलिए वो कॉनकेव होता है कि सेक्रीफाइस रेशियो जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, पर अगर कन्वेक्स है तो इसका मतलब ये है कि हम जो गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इस तरीके से वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। अगर हम मान लो गुड एक्स को 20 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम गुड वाई का सेक्रीफाइस सिर्फ 10 ही कर रहे हैं। अगर मैं गुड एक्स को 40 कर रही हूँ तो 20 माइनस 40 तो मतलब 20 का डिफरेंस आ गया कि मुझे 20 प्रोडक्शन करनी है, पर मैं गुड वाई का कम सेक्रीफाइस कर रही हूँ गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। कांस्टेंट इसलिए होता है कि मान लो मैं दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल इक्वल कर रही हूँ, मान लो 10 10 का 20 20 का 30 मतलब 20 सेक्रीफाइस कर रही हूँ 20 गेन हो रहा है, फिर 20 सेक्रीफाइस कर रही हूँ 20 गेन हो रहा है, इसलिए वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जो रोटेशन होती है या राइटवर्ड शिफ्टवर्ड होता है वो इसलिए होता है, मान लो गुड एक्स की टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो गई, जो हम पहले आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे अब हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम गुड वाई के साथ हो रहा है, या फिर जो रिसोर्सेज है उनका स्टॉक हमें मिल गया है ज्यादा, तो हो सकता है कि मान लो जो रिसोर्सेज एक्स में यूज हो रहा था वो हमारा चेंज हो गया, तो वो राइट पर शिफ्ट होता है, क्योंकि अजम्पशंस तो ये होता है फिक्स्ड है। अगर फिक्स्ड अजम्पशन ना हो, अगर हम ये सोचे कि फिक्स नहीं है, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट नहीं है, हम उसे सही कर सकते हैं, तो राइटवर्ड और शिफ्टवर्ड पीपीसी कर्व हो सकता है। ठीक है, और जो हमारा थर्ड डायग्राम है इट्स अबाउट विच आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। जो हमारा पीपीसी कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उस पे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर है इसका मतलब देयर इज अ अंडर यूटिलाइजेशन, देयर इज अ वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज आर रिमेन आइडल। और अगर बाहर है तो नॉट अटेनेबल है, मतलब हम अटेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं, हम उन्हें बढ़ा नहीं सकते, इसलिए वो नॉट अटेनेबल होता है, नॉन अटेनेबल होता है। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड हैव अ गुड डे।